1025. 41x square is equals to 1025. x square के 1025 के नीचे जाएगा 41, which you'll get as 25. x square root of 25 is going to get you 5. Then we go 4x हो जाएगा 20. 4 into 5 और 5x 5 हो जाएगा 5 into 5 25. into 25. Fine? Done? समझ में आ गया कैसे कॉमन फैक्टर x यूज करना है? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. I want you to solve the second one. The next two will be the homework. Sum of three numbers is 1, 2, 3. Ratio of first and second is this, third is this, and find the difference between the second and third number. 6, 15, 20. These are the ratios. So let the numbers be 6x, 15x and 20x. So ये number हो गए और इनका sum है यानी कि 6x plus 15x plus 20x is equals to 1, 2, 3. तो ये हो जाएगा अब 21x, 41x, 23x is equals to 1, 2, 3 upon 41. Yes, ma'am. Just a second, ma'am. Wow. किसका हो गया? रमीशा answer. That is fast. The answer is 15. Find the difference between the second and third number. Okay. Am I doing this correctly? Yes, I am. The answer is 15. How 1 did 5. I do this? Anyone else who got this number? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jeet got that answer. Divya got the answer. Yes, ma'am. Lasya also got the answer. Lakshya got the answer. Anyone जिसका solve नहीं हुआ हो? Ma'am, I forgot how to do it. कोई नहीं. So again, sum of three numbers here. A is to B is given as 2 is to 5. And B is to C is given 3 is to 4. तो इसको फिर टेबल में डालेंगे हम लोग 2 is to 5, 3 is to 4. ठीक है, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. 6 is to 15 is to 20. अब तुम्हारा A is to B is to C का रेशियो आ गया. तो अब इसको निकालने के लिए बाहर हम लोग क्या करेंगे? We'll deduce the common factor. So 6x, 15x and 20x. इन तीनों का sum will be equal to 123 and subsequently you'll solve the question. Fine? Anam? Anyone else? जिसका नहीं solve हुआ ये? Fine. The first and third will be your homework. Okay? Now, finding number of coins in a bag, a relatively not very important concept, but you can refer it to if something is asked out of the blue kind of thing. ठीक है? और ये थोड़ा common factor x पे based है, so it's fine. A bag contains 5 पैसे, 10 पैसे and 20 पैसे coins. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो तुम्हारा focus होना चाहिए, that should be on the units. 5 पैसे, 10 paise and 20 paise coins in the ratio 2 is to 4 is to 5. Fine. Total amount in the bag is rupees 4.50. जो ये units दिए हैं, these are given in paise. 1 rupees equals to how much paise? 100 paise. Right. So just keep this in mind. 1 rupees is equals to 100 paise. Fine. How many coins are there of 20 paise? पूछा 20 पैसे के कितने coins हैं? 5 पैसे के coins 2 हैं, 2x whatever. 10 पैसे के coins 4x है, 20 पैसे के coins 5x है, और इन सारे coins को मिला के total amount is rupees 4.50. ठीक है? तो इसमें 2 step में तुम्हारा question बनेगा. First of all, again, you'll deduce the ratio, जहाँ पे भी ratio दिखे, deduce that to a common factor x, which gives you 2x, 4x and 5x. ठीक है? 2x is the number of 5 paise coins. 4x is the number of 10 paise coins. And 5x is the number of 20 paise coins. Fine. So imagine, अगर तुम्हारे पास 5 पैसे हैं, ठीक है? 5 पैसे के वैसे कॉइन्स तुम्हारे पास वैसे 4 कॉइन्स हैं, ठीक है? तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वहां पर? तुम्हारे पास 5 पैसे के 4 कॉइन है, कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा? 20 पैसे. 20 पैसे, राइट?
5 पैसे के 4 कॉइन्स में अब तुम 20 पैसे के 5 कॉइन्स ऐड कर दो, कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा? 140. क्या 140 क्या बोला? 120. 120 20 into 500 plus 20. अब इसमें 5 पैसे के 4 कॉइन में 20 पैसे के 5 कॉइन में 10 पैसे के 3 कॉइन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 150. 150. समझ आया? इट्स जस्ट हम्म। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। जैसे पैसे कैलकुलेट करते हैं, 500 के 10 नोट्स है, कितना हो गया? 5000। उसके बाद 200 के 5 नोट्स है, 200 into 5000, 1000 plus 10,000 which gives you 11,000, जो हम लोग टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई बनिया है यहाँ पे? एनीवन? उसको बताओ ऐसे कैसे नोट्स कॉइन्स कैलकुलेट करते हैं। फाइन, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम ट्राइंग यू गाइस टू एक्सप्लेन कि जैसे पैसे कैलकुलेट करते हो। 10 रुपीज के मेरे पास 5 नोट है, मेरे पास कितने टोटल है? 50 रुपए मेरे पास। मैं पानी पूरी खा सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, ऐसे ये वो। तो वैसे ही सो हियर सिमिलरली, बस जो मैं बताई कि 3 कॉइन्स है या 4 कॉइन्स है, वही सेम चीज हमारा रेशियो में दिया है। रेशियो से बाहर निकालोगे 2x 4x 5x से बिकम होल नंबर्स, उससे तुम मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे विच विल गिव यू द टोटल अमाउंट एज 4.50। ठीक है, 5 पैसे के यू हैव 2x कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट इसका 5 पैसे का? 10 पैसा, 10 5 पैसे, पैसे के यू हैव 2x नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट? 5 पैसे 10 के पैसे, 4 कॉइन थे, 5 पैसे के 4 कॉइन थे, तो वहां पे टोटल अमाउंट क्या हो रहा था? 20 पैसे, तो 5 पैसे के अगर 10 2x पैसे, कॉइन्स है तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा? Is 10 it पैसे, 5 plus 5 or 5 into 5? 5 पैसे के 2x नंबर ऑफ कॉइन्स है, जैसे 5 पैसे के 4 कॉइन्स थे, 10 पैसे, 4 की जगह यहाँ पे 2x है, इट्स 10x पैसे। फाइन, सो 10x पैसे। ठीक है, सिमिलरली 10 पैसे के यहाँ पे 4x कॉइन्स है, तो टोटल अमाउंट विल बी 40 paise. 40x पैसे, 40x पैसे। और 20 पैसे के 5x कॉइन्स है, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? 100x paise. 100x पैसे। टोटल अमाउंट हमारे पास 4.50 दिया है रुपीस, उसको पैसे में कन्वर्ट करो, कितने होंगे? 450. 450 पैसे, 450 पैसे। This is the equation which you have to get. So it's going to be 50 plus 100, which is 150x is 3. equals to 450. X is going to be 3. यहाँ पे जो पॉइंट पे लिखा है ना, यहाँ पे 5 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करके लिखा है, तो तुम लोग डेसिमल वाले में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मैंने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा वो ज्यादा इजी होता है। फाइन, तो इसलिए यहाँ पे 150x is equals to 450 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हम लोग, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट इट इज। हमारे पास एक है 5 पैसे का कॉइन, एक है 10 पैसे का कॉइन और एक है 20 पैसे का कॉइन। जो ये पर्टिकुलर कॉइन्स है, ऐसे ऐसे हमारे पास 2x कॉइन्स है। जो पर्टिकुलर 10 पैसे का कॉइन है, ऐसे ऐसे हमारे पास 4x नंबर ऑफ कॉइन्स है, और 20 पैसे के ऐसे ऐसे हमारे पास 5x नंबर ऑफ कॉइन्स है। In order to find the total amount, we did 5 into 2x, ये आ गया 10x, इसका total amount became 40x, और इसका total amount became 100x। टोटल अमाउंट हो गया 10x plus 40x plus 100x। टोटल अमाउंट हमारे पास दिया है 450, x आ गया हमारे पास 3। अब पूछ रहे हैं कि 20 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो 20 पैसे के हमारे पास 5x कॉइन्स थे, 5x, x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, सो इट्स गोइंग टू बी 5 into 3 which is 15 number of coins। Got it? समझ में आ गया सबको? Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम किसी को भी? No, ma'am. Everyone got the concept? Yes, ma'am. मैम वो x equals 3 कैसे है? x equals 3, यहाँ पे ये समझ में आ गया। 100x plus 10x plus 40x is equals to 450, तो 10x plus 40x 50x, 50x plus 100x is equals to 150x, 150x is equals to 450, x is equals to 450 by 150, यहाँ पे x is equals to 3 आ गया। ओके, समझ में आ गया है सबको?
ये शॉर्ट ट्रिक है, बट शॉर्ट ट्रिक यूज कर भी सकते हो, हाँ शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, उसका एक दूसरा मेथड भी है। तो जैसे क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी 1 is to क्वांटिटी 2 is to क्वांटिटी 3, तो इसका क्वांटिटी क्या है 2 4 5, तो ऐसे ऐसे रेशियो में लिख दूँ 2 is to 4 is to 5। वैल्यू दिया हुआ है सबका 5 10 और 20, ठीक है। अब इन तीनों सॉरी दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ गया, ये 40 आ गया, ये 100 आएगा, ठीक है। ये 10 प्लस 40 प्लस 100 गिव्स यू वैल्यू 150 विच इज t। कॉमन फैक्टर x निकालने के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट विच इज 450 बाई 50 करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर x हमारा 3 आ जाता है। ये भी ट्रिक यूज कर सकते हो, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। It's the same thing. नहीं समझ आया? I feel like this is the same thing. This is the same thing, but this gives you the formula rather than उस माथा पच्ची में कि you have to put x here, you have to deduct the x अच्छा, here. x का okay. Fine. Sorry. Finding number. Yes. Solve the first one, then we'll move on to the last topic. Total is 240 rupees. Okay, so we go with 2x plus 3x plus 4x is equals to 240.5x plus, wait, what did I just do? Wait, okay, got it. Yeah, so this is 1x plus 3x plus 8x, 240 है ना? हाँ 240 है। 4, 8, 12, Done? 241x, Yes. 20x is equals to 20. And what did we have to Fine. You find? guys How have many 20 coins are seconds there? more. Yes, ma'am. Done? X is 20. So we go जिनसे नहीं बनाया, anyone? जिनसे नहीं बनाओ, or if you haven't 20, understood the concept, I 3x, can explain 60, through this question. 8x. किसी से नहीं बना? Yes, महाती? नहीं बना, concept नहीं समझ पाया, तो question नहीं बना। I didn't understand like the split concept. The split of Concept नहीं the समझ पाया। paisa. हाँ. Okay. So a bag contains 50 paise, 1 rupee, 2 rupee coins, and the ratio 2 is to 3 is to 4, rupees 240 हमारे पास। तो most convenient would be कि इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, फिर सारे रुपीस में हो जाएंगे। So it's going to be 0.50 रुपीस, ठीक है। 50 by 100 कर दिया बस, ठीक है। अब you want to understand through the short trick or the concept? Madhi? Can you help with the concept? Concept, fine. So ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 3x, ये 4x। इसमें अगर हम लोग वैल्यू सेपरेट करें तो 2x, 3x and 4x. 2x is for 0.50 rupees, 3x is for 1 rupee and 4x is for 2 rupee, ठीक है। तो अब ये will write on, तो जो हमारा 0.50 है, इसके हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 2x। जो 1 रुपी है हमारे पास, उसके कितने कॉइन्स हैं? 3x। और जो 2 रुपी है हमारे पास, उसके कितने कॉइन्स हैं? 4x। फाइन। तो अगर यहाँ पे 0.50 के रुपीस के सॉरी 0.50 रुपीस के 2 नोट्स होते, तो कैसे टोटल अमाउंट कैलकुलेट होता? महादी? multiply. Right. So So that is what you have to do it here. 0.5 into 2x, ठीक है। वहां पे बस 2 की जगह it's 2x number of coins. Fine. 1 into 3x and 2 into 4x. इन सबको ऐड करोगे, you'll get the total amount, which gives you x plus 3x plus 8x. Total amount क्या दिया हुआ है? 240. So it's going to be 12x is equals to 240. X is equals to 20. फिर क्या पूछ रहा? How many coins are there in total? तो you can do it like x है तो 20. 20 into 3 is Ma'am, equals to it's 60. 11. Sorry. What? What? Nothing, ma'am. You're right.
ओके x इज इक्वल्स टू 20 हो गया, तो 2x हो गया 40, 3x हो गया 60 और 4x हो गया 80. फाइन. तो ये Yes, टोटल I नंबर got ऑफ it. पॉइंट्स निकल गया 180.